स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह के। सो कॉन्सेप्चुअल्स की डिस्कशन साथ साथ करते हैं। कह रहे हैं पहला, इज करंट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? बताइए करंट क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। क्यों होता है स्केलर? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इट हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, देयरफॉर इट्स अ स्केलर। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर? वायर बोला मतलब कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, flow of electrons या net organized movement of electrons cause the electric current in the wire. What is the relation between conventional current direction and direction of motion of electrons? Opposite, because conventional direction of current is the direction of flow of positive charge. If electrons यानी negative charge moves, then the actual direction is opposite. So conventional direction आप हमेशा क्या लेते हो? Reverse. Fourth, why is there no electric current through a metallic conductor under normal conditions even when it possesses a large number of electrons? Because there is a random movement of electrons. Random movement of electrons होता है, there is no net organized movement in any direction. Therefore current क्या हो जाता है? Zero. What are the carriers of electric current in a bar made of silver? क्या होता है ये? Iron. A bar made of silver, ये क्या है? Conductor. Conductor यानी metal. Metal में कौन होते हैं? Electrons. Wire made of alloy nichrome, ये भी कौन है? Metal. Electrons. हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब कौन होगा? पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। वोल्टाइक सेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पता है ना? H2SO4 होता है ना इसमें। नेक्स्ट, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटालिक कंडक्टर। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, electrons start accelerating towards the positive end of a conductor. While moving towards the positive end, they suffer frequent collisions. So the average velocity with which they move towards the positive end of a conductor is known as drift velocity. Why is that that the electrons carrying current in the conductor move with a steady average speed even when they are experiencing a force? Because they suffer frequent collisions with other electrons and with metal ions, due to which they lose the energy which they acquired while accelerating. So the average velocity remains constant. Are the paths of electrons straight line between successive collisions with the positive ions of the metal in the absence of electric field? Presence. Absence में yes, presence में no. Absence है अगर तो क्या होगा? Collision हुआ, इधर से दूसरी जगह collision हुआ, तीसरी जगह collision हुआ. There is only the only motion is due to momentum of electrons only. Presence of electric field में क्या होगा? Collision हुआ, momentum एक डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ओवरऑल फोर्स विल कीप ऑन चेंजिंग। मेरे पे ये बॉडी है, मैं ग्रेविटी नीचे लग रही है, मैं इसको सामने धक्का देता हूं तो ये सीधा नहीं जाएगी, ये यूं प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में गिरेगी। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम एक तरफ है बट एक एडिशनल फोर्स आ गई, तो इसका ओवरऑल मूवमेंट क्या हो जाएगी? कर्व्ड पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द एब्सेंस रहेगा, इन द प्रेजेंस कर्व्ड होगा। When the electrons drift in the metal from lower to higher potential, टू होगा ये, from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons are moving in the same direction? नहीं, ओवरऑल मूवमेंट होता है। ऐसा हो सकता है 10 जा रहे हो, 5 टक्कर खा के वापस आ रहे हो, तो नेट मूवमेंट एक डायरेक्शन में होती है। सो देयर इज अ रैंडमाइज्ड मोशन बट ओवरऑल मूवमेंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। Explain how electron mobility change for a good conductor. Mobility का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? मोबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला E tau by m। किसके साथ? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज्ड। टेम्परेचर को कम करोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम हो जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर कम करोगे तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकंड, अप्लाइड पोटेंशियल इज डिफरेंस इज डबल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सो नो इफेक्ट। यू गेट 10th। 11th, explain briefly how the drift velocity of electrons in a metallic conductor change when temperature of the conductor is increased. Drift velocity का फॉर्मूला E tau by m। आपने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कोलिजन की भी, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी।
applied potential difference is decreased keeping temperature constant. Applied potential difference, इसका फॉर्मूला E tau by m into V by L. अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है जी. Why is it necessary to apply potential difference across the end of conductor to have an electric current? So that there is a net movement of electrons in a particular direction. If no potential difference is applied, then there is a random thermal motion. So there is no organized movement in any direction, therefore no current. So to get current, we need an organized movement in one direction. For that, we need to apply potential difference. The velocity of charge carriers of current of about 1 ampere in a metal under normal condition is of the order of velocity of charge carriers. ये क्या आपके पास हो गया? Velocity of charge carriers का मतलब ये drift velocity की बात कर रहा है. Drift velocity जो है वो अराउंड होता है several thousand नहीं, मैंने आपको बताया था ना few millimeters per second, तो ये आपके fraction of millimeter per second. ठीक है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं. ये पिछले वाले सारे क्लियर हैं, कॉन्सेप्चुअल सारे समझ में आ गए. आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे. पहला किया था, हो गया फर्स्ट पे ध्यान दीजिए. पहला कर रहा हूं मैं. चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 into 10 to power -4 meters per second. ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 7.5 into 10 to power -4 meters per second in an electric field of 3 into 10 to the power -10 3 into 10 to the power -10 volt per meter has a mobility. SI units में mobility का formula drift velocity per unit electric field. So 7.5 into 10 to the power -4 divided by 3 into 10 to the power -10. ये कितना आ गया? 2.5 into 10 to the power 6 यूनिट्स क्या होंगे? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. सो 2.5 into 10 to the power 6 ए ऑप्शन. पहला क्लियर. सेकेंड, ये तो हो भी गया होगा सबका. सेकेंड हुआ नहीं हुआ? हो गया. वेरी गुड. सेकेंड पे ध्यान दो. कोई बात नहीं, सामने देखो, सेकेंड करके साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ अ पीस ऑफ मेटल ऑफ एटॉमिक वेट 60 इज 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर. एक एक करके बात करते हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर. लेंथ दी है 1 मीटर. डेंसिटी दी है 5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. I'll give you time to copy, please. समझने पे ध्यान दो. मोलर मास दिया है 60. फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. पहले इसकी बात करते हैं. मोलर मास 60 है. मोलर मास 60 है. मोलर मास 60 है. मोलर मास 60 का मतलब 60 ग्राम्स में 6.023 into 10 to the power 23 क्या होंगे? एटम्स. अब क्वेश्चन में क्या बोला? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है आपको. ठीक है. सो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? 60 ग्राम्स इन 60 ग्राम्स कहाँ है? 6 into 10 to the power 23. नंबर ऑफ एटम्स हैं 6 into 10 to the power 23. यहां तक कोई दिक्कत? 60 ग्राम्स में है और यहां सब कुछ आपको किस में दिया हुआ है? SI यूनिट्स में. तो इसको केजी में करो. इन 60 kg नंबर ऑफ एटम्स 6 into 10 to the power 26. यहां तक कोई दिक्कत? 60 किलो में इतने एटम्स हैं तो 1 किलो में कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स 6 into 10 to the power 26 डिवाइडेड बाय 60. इधर तक तो कोई टेंशन नहीं होगी किसी को भी. ये मोलर मास 60 है ना बेटा, वो केजी है ना. 26 कर दिया उसको मैंने. 6 से 6 कटा 10 बचा, ऊपर कट के 10 to the power 25. 10 to the power 25 एटम्स है. ठीक है, यहां तक क्लियर? 10 to the power 25 एटम्स हैं. अब टोटल इन
एरिया इंटू लेंथ इंटू वॉल्यूम केजी। मास यही होता है ना, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एल रो, एल रो केजी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 10⁻25 इंटू एल रो। इधर तक कोई दिक्कत बेटा, ये नंबर ऑफ एटम्स टोटल आ गए। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला, ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कितना आ गया, 10⁻25 इंटू एल रो, मतलब नंबर डेंसिटी कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया 10⁻25 इंटू डेंसिटी। मानते हो ये बात, मानते हो ये बात, ए इंटू एरिया इंटू लेंथ कट गया, कितना आया 10⁻25 इंटू डेंसिटी कितनी है 5 इंटू 10⁻3, तो नंबर डेंसिटी हो गई 5 इंटू 10⁻28 सवर पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, ये आ गया नंबर डेंसिटी। ऑल्सो फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू ए एन ई बी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया, करंट ऑफ 16 एम्पियर पास, आई अपॉन ए एन ई। सो आई की वैल्यू 16, एरिया की वैल्यू 10⁻⁻6, नंबर डेंसिटी 5 इंटू 10⁻28 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई दिक्कत यहां तक, श्योर। 1.6 से 16 कटा 10, 5 से 10 कटा 2, आ गया आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर, नीचे -25 प्लस 28 माइनस प्लस 3, ऊपर जाके -3 मीटर्स पर सेकेंड। नो कैलकुलेशन। नंबर डेंसिटी का निकालना समझ में आया। अब क्वेश्चन में अगर दिया होता एवरी एटम कंट्रीब्यूट 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे डबल कर देते, क्योंकि ये निकल रहा है नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या निकलेगा, नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके नंबर डेंसिटी। समझ में आया, प्लीज इसको लिखो अपने हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT question, very important. First, estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 1 into 10⁻⁻7. Cross-sectional area आपको दिया है 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, carrying a current of 1.5 एम्पियर, इसमें करंट है 1.5 एम्पियर का। Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. फिर से वही सिचुएशन हो गई, 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, नंबर डेंसिटी निकालोगे। नंबर डेंसिटी निकालने के लिए, नंबर डेंसिटी निकालने के लिए आपको डेंसिटी पता है कॉपर की कितनी दी है, 9 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, मोलर मास 63.5 AMU। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे 63.5 kg of copper contains 6 into 10 to the power 26 electrons, 26 atoms. Yes or no? 26 क्यों किया, क्योंकि kg लिया, ग्राम होता तो कितना लेते 23, followed by 1 kg of copper contains 6 into 10 to the power 26 divided by 63.5 atoms. कोई दिक्कत, 1 किलो कॉपर में इतने एटम्स होंगे, ये समझ में आता है, 1 किलो एटम में इतने एटम्स होंगे। बेटा मैंने 26 कर दिया बावड़े, उसको केजी में करा तो यहाँ 26 कर दिया ना अपने आप। आगे वॉल्यूम और वो सब के ऐसा यूनिट्स में, या ग्राम आ जाता और वो वॉल्यूम केजी वगैरह में चलेंगे तो फिर क्या करूंगा, उसको सबको सीजीएस में थोड़े ना कन्वर्ट करूंगा। सो AL रो केजी ऑफ कॉपर कंटेन्स 6 into 10 to the power 26 upon 63.5 atoms into AL रो।
atoms. अब therefore total number of electrons वो कितने हो गए? सेम 6 into 10 to the power 26 upon 63.5 into AL rho electrons. So number density कितनी हो गई? Total number divided by volume 6 into 10 to the power 26 63.5 into density 9 into 10 to the power 3. इतना पर मीटर क्यूब. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. नंबर डेंसिटी आ गई. आपको क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला I अपॉन ANE. I कितना? करंट कितना? 1.5. एरिया 10 to the power minus 7. नंबर डेंसिटी 6 into 10 to the power 26 मतलब 6 into 9 into 10 to the power 29. डिनोमिनेटर में 63.5 वो ऊपर चला गया. E 1.6 into 10 to the power minus 19. सॉल्व करोगे आ जाएगा 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड अराउंड. ठीक है. आगे क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट में कंपेयर द स्पीड ऑब्टेन्ड विद थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. थर्मल स्पीड देखो, बी का फर्स्ट थर्मल स्पीड कितनी होती है? √3 kT बाय मोलर मास. ये √3 kT बाय m. मोलर मास नहीं, √3 kT बाय m. √3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10 to the power minus 23 into temperature 300 केल्विन लो रूम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मास 1.6 into 10 to the power minus 19. ये आ जाएगी स्पीड, थर्मल स्पीड. ये आ जाएगी थर्मल स्पीड. ठीक है. ये आ जाएगी थर्मल स्पीड. और थर्ड जी, और सेकेंड पार्ट स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड. याद है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तेजी से चलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन की स्पीड से चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से. ध्यान है बात? ये यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है एकदम स्प्राइट की तरह? ओके. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. आ जाते हैं फोर्थ पे. अ कॉपर वायर हैज 2 into 10 to the power 21 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ. मतलब अगर मुझे नंबर डेंसिटी चाहिए तो वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. एरिया नहीं पता, लेंथ पता है. इतना पर मीटर क्यूब. यहां तक मानते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. लिखने का टाइम दूंगा. वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2 क्यों? लेंथ है 1 सेंटीमीटर. ये हो गया 10 to the power minus 2 मीटर. आगे, सपोज दैट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द वायर इज 0.05 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ड्रिफ्ट स्पीड है 5 into 10 to the power minus 4 meters per second. How many electrons would pass through a given cross section of the wire every second? पहले करंट निकालते हैं. I is equal to ANEVD. एरिया मन्ने नबेरा. नंबर डेंसिटी 2 into 10 to the power 21 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू 10 to the power minus 2. मन्ने नबेरा था, कट गया. E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19. ड्रिफ्ट स्पीड 5 into 10 to the power minus 4. सॉल्व करो. 16 पंजे 8 2 16 इंटू 10 to the power. चल भाई ऊपर 21 minus 19 कितना हुआ? 2 और minus 6 2 4 कट गया. 16 एम्पियर. सब कट के करंट आ गया 16 एम्पियर. ठीक है. 16 एम्पियर करंट है. आपको क्या बोल रहा है? How large would the current be flowing? तो पहले निकल गया. How many electrons would pass through a given cross section every second? Every second. टाइम दिया है 1 सेकेंड. करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम. 16 इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 1. सो चार्ज हुआ 16 कूलम. 16 कूलम इन 1 सेकेंड पास हो रहा है. इसका मतलब
N हो गया 16, N हो गया 16 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये आ गया 10 टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। क्या ये समझ में आते हैं दोनों आंसर? ठीक है, प्लीज लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इज 8.5 इंटू 10 टू पावर 28। नंबर डेंसिटी दे दी 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। आगे क्या बोला? हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू द अदर एंड। बेटा एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टाइम हो जाएगा L बाई VD। टाइम हो जाएगा L बाई VD। L बाई VD का मतलब सबसे पहले हम VD निकालेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? I इज करंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? लेंथ दी हुई है 3 मीटर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, करंट दिया है 3 एम्पियर। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी I अपॉन ANE, सो 3 अपॉन एरिया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, नंबर डेंसिटी 8.5 इंटू 10 टू पावर 28, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इधर तक कोई शक? यहां तक कोई शक किसी को? कैलकुलेट करते हैं। यह आ गया अपना 3 अपॉन 2 दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 8.5 डिवाइडेड बाय 1.6, 0.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 प्लस 28 माइनस 3 आ जाएगा ऊपर, मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है? टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस 3, ड्रिफ्ट स्पीड 0.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपका, बहुत ज्यादा आ रहा है क्या? हाँ ठीक, 3 डिवाइड बाई 0.11, ये आता है 27.27 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 2.727 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड्स। यस, गॉट इट? समझ में आ गई? ये थे सारे न्यूमेरिकल्स। अगर किसी के कोई डाउट बचे तो प्लीज दोबारा कीजिए, कोई दिक्कत हो पूछिए।